Hello, I'm Vinadra Sri. Today we are reading on violence about the author. J. Krishnamurti is a reputed writer and an educationist. Like Bertrand Russell, his mind was full of revolutionary ideas to change the old-fashioned world. There is a tinge of ethical values in his writings. His contribution in the field of education is remarkable. Under Krishnamurti Foundation, many educational institutions are functioning which are devoted to build up a generation of brilliant students and academicians. टिंज हल्का सा रंग चढ़ना, आभा, झलक पुट, रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी, एकेडमिशियंस शिक्षाविदों, एथिकल नैतिक, इंस्टीट्यूशन संस्थान, अबाउट द टेक्स्ट। अब इस चैप्टर के बारे में In the present article, Krishnamurti points out the dangers of violence, which is a matter of global concern. There is a need to develop a new culture inclusive of love, pity, patience and generosity. Education can be a good tool to curb violence. ग्लोबल कंसर्न का मतलब है वैश्विक चिंता, इंक्लूसिव इसमें शामिल, कर्ब नियंत्रण, प्रतिबंध, रोक। There is a great deal of violence in the world. There is a physical violence and also inward violence. Physical violence is to kill another, to hurt other people, consciously, deliberately or without thought, to say cruel things, full of antagonism and hate, and inwardly, inside the skin, to dislike people, to hate people, to criticize people. Inwardly, we are always quarreling, battling, not only with others, but with ourselves. We want people to change, we want to force them to our ways of thinking. In the world, as we grow up, we see a great deal of violence at all levels of human existence. The ultimate violence is war, the killing for ideas, for so-called religious principles, for nationalities, the killing to preserve a little piece of land. To do that, man will kill, destroy, maim, and also be killed himself. There is enormous violence in the world. The rich wanting to keep people poor, and the poor wanting to get rich, and in the process hating the rich, and you being caught in society are also going to contribute to this. Contribute योगदान देना, so called तथाकथित कहलाते हैं जो अल्टीमेट अंतिम, इनसाइड द स्किन दिल से हृदय से, एंटागोनिज्म विरोध शत्रुता, मैम अपंग कर देना पंगु बना देना, कॉन्शियसली पूरी चेतना के साथ जानबूझकर। अब तक हमने पढ़ा कि हिंसा होती है दो प्रकार की, वायलेंस दो प्रकार की, फिजिकल वायलेंस शारीरिक हिंसा, इनवर्ड वायलेंस आंतरिक हिंसा। फिजिकल में हम बाहर से जो है लोगों को मतलब किल जान से मारना, हर्ट चोट पहुंचाना जानबूझकर या बिना सोचे समझे, और शत्रुता रखना। आंतरिक हिंसा जो इनवर्डली होती है उसमें क्या होता है, लोगों से नापसंद करना, डिसलाइक करना, नफरत करना, आलोचना करना। इस प्रकार हिंसा जो है दो प्रकार की बताई गई है। और इन द वर्ल्ड संसार में एज वी ग्रो अप, जैसे हम बड़े होते हैं, वी सी दैट ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, बहुत अधिक मात्रा में हिंसा होती है एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, हर स्तर पर जहाँ पर भी मानव का अस्तित्व है वहाँ हमको हिंसा दिखाई देती है। द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर, और जो अंतिम हिंसा का रूप है वो है युद्ध, द किलिंग फॉर आइडियाज। और युद्ध किसके लिए, विचारों की हत्या के लिए, फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स या धार्मिक सिद्धांतों के लिए, फॉर नेशनलिटीज राष्ट्रीयता के लिए, टू द किलिंग टू प्रिजर्व ए लिटिल पीस ऑफ लैंड या जमीन के छोटे से टुकड़े को बचाने के लिए,
टू डू दैट, ऐसा करना। मैन विल किल, इसमें इंसान मारेगा, हत्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, अपंग कर देगा, मैम बना देगा, हाथ पैर तोड़ के। ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, या खुद की हत्या कर देगा। तो ये सभी वायलेंस के प्रकार है। देयर इज इनॉर्मस वायलेंस, विशाल मात्रा में हिंसा के रूप है संसार में। और रिच जो मैन है, अमीर, वो चाहते हैं कि गरीब गरीब ही रहे, गरीब चाहते हैं कि अमीर हो। इस प्रोसेस में आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, हिंसा करते हैं, वायलेंस करते हैं। और यू बीइंग कॉट इन सोसाइटी, और क्योंकि तुम भी समाज के हिस्से हो, इसलिए यू आर गोइंग, तुम भी जा रहे हो, टू कंट्रीब्यूट दिस, इसमें योगदान देने जा रहे हो। सेकेंड पैराग्राफ, there is violence between husband, wife and children. There is violence, antagonism, hate, cruelty, ugly criticism, anger. All this is inherent in man, inherent in each human being. It is inherent in you, and education is supposed to help you to go beyond all that, not merely to pass an examination and get a job. You have to be educated so that you become a really beautiful, healthy, sane, rational human being, not a brutal man with a very clever brain who can argue and defend his brutality. You are going to face all this violence as you grow up. You will forget all that you have heard here and will be caught in the stream of society. You will become like the rest of the cruel, hard, bitter, angry, violent world, and you will not help to bring about a new society and new world. इस पैसेज में देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, परिवार में ही हिंसा देखने को मिलती है, पति पत्नी और बच्चों में हिंसा होती है। देयर इज वायलेंस, एंटागोनिज्म, हिंसा है, विरोध है, शत्रुता है, नफरत है, क्रुएलिटी है, अगली क्रिटिसिज्म या भद्दी आलोचना है, गुस्सा है, एंगर है। ये सभी इनहेरेंट है, जन्मजात है, अलग से किसी को सिखाया नहीं जाता है। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, हर इंसान में ये पाई जाती है। इट इज़ इनहेरेंट इन यू, और ये तुम्हारे अंदर भी है। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प, और शिक्षा जो है सपोज किया जाता है, सोचा जाता है कि शिक्षा जो है हेल्प करेगी यू, तुम्हारी, टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, इन सब से परे जाने में, यानी कि इन सब से पार पाने में। नॉट मियरली टू पास इन एग्जामिनेशन, शिक्षा केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं है और एक जॉब पाने के लिए। यू हैव टू बी एजुकेटेड, तुम्हें एजुकेटेड होना पड़ेगा, सो दैट यू बिकम ए रियली ब्यूटीफुल, हेल्दी, सेन, रेशनल। तुम्हें शिक्षा इसलिए पाना पड़ेगा ताकि तुम शिक्षा पा करके एक वास्तविक रूप से सुंदर, स्वस्थ, सेन यानी समझदार, रेशनल, विवेकशील ह्यूमन बीइंग, इंसान बन सको। नॉट ए ब्रूटल मैन, न कि एक क्रूर व्यक्ति, निर्दयी मतलब जंगली, पाशविक प्रवृत्ति जैसा इंसान। विद ए वेरी क्लेवर ब्रेन, जिसका कि पढ़ लिख करके बहुत तेज दिमाग हो गया हो। और हु कैन आर्ग्यू, जो बहस कर सकता हो और डिफेंड, बचाव कर सकता हो हिज ब्रूटिलिटी, अपनी निर्दयता का, यानी कि अपनी निर्दयता को अपनी तेज दिमाग की बहस से अपने तर्क पक्ष में रख करके बचा सके और अपने आप को निर्दय साबित नहीं करने देवे। यू आर गोइंग टू फेस, तुम सामना करने जा रहे हो ऑल दिस वायलेंस, इस सभी प्रकार की हिंसा का, एज यू ग्रो अप, जैसे ही तुम बड़े होते जाओगे। यू विल फॉरगेट, तुम भूल जाओगे, ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर, जो कुछ तुमने अभी यहाँ सुना है। एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, और तुम भी समाज की धारा में पकड़े जाओगे, समाज की धारा में मिल जाओगे। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूअल, और बाकी जितने निर्दयी है समाज में वैसे तुम भी बन जाओगे। हार्ड, कठोर, बिट्टर, कड़वे, एंग्री, क्रोधी, वायलेंट, हिंसक, जैसा कि ये वर्ड है, संसार है। एंड यू विल नॉट हेल्प, और फिर तुम मदद नहीं करोगे, टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, नया समाज बनाने में, ए न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया बनाने में। बट ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, लेकिन एक नया संसार बहुत ज़रूरी है। ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी, एक नई संस्कृति बहुत ज़रूरी है। द ओल्ड कल्चर इज़ डेड, क्योंकि जो पुरानी कल्चर है, संस्कृति है, वो डेड हो गई है। बरीड, उसको दफना दी गई है। बर्नड, उसको जला दी गई है। एक्सप्लोडेड, विस्फोट करके उड़ा दी गई है। वेपोराइज्ड, उसको वाष्पीकृत कर दिया गया है। मतलब ये समझ लो, उसको जो पुरानी संस्कृति है उसको समाप्त कर दिया गया। यू हैव टू क्रिएट, अब तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा, नई रचना करनी पड़ेगी न्यू कल्चर की।
ए न्यू, पहले मीनिंग देख लें। इनहेरेंट, जन्मजात जो अपने अंदर प्रवृत्ति होती है। ब्रूटल, पाशविक, क्रूर, जंगली। रैशनल, विवेकशील। सेंस, स्वस्थ मस्तिष्क वाला, समझदार। आर्ग्यू करना, तर्क करना। तो ए न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, एक नई संस्कृति हिंसा पर आधारित नहीं हो सकती। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू, नई संस्कृति तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। सो यू, बिकॉज द ओल्डर जनरेशन हैज़ बिल्ट ए सोसाइटी, क्योंकि जो पुरानी संस्कृति है, ओल्डर जनरेशन है, पीढ़ी है, उसने जो सोसाइटी बनाई है बेस्ड ऑन वायलेंस, जो हिंसा पर आधारित है। बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, वो आक्रामकता के ऊपर आधारित है। एंड इट इज़ दिस, और यह दैट हैज़ कॉज्ड, इसी वजह से ऑल दी कन्फ्यूजन, सारा भ्रम है। ऑल दी मिजरी, सारा दुख है, तकलीफ़ें हैं। द ओल्डर जनरेशन, जो पुरानी संस्कृति मतलब पुरानी पीढ़ी है, जनरेशन्स है, हैव प्रोड्यूस्ड, उसने प्रोड्यूस किया है, निर्माण किया है। दिस वर्ल्ड, इस संसार को। एंड यू हैव टू चेंज इट, और तुम्हें इसको बदलना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक, तुम केवल पीछे नहीं बैठ सकते एंड से, और नहीं कह सकते कि आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल, कि मैं बाकी लोगों के पीछे हूँ, उनका अनुसरण करूँगा। एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन, और केवल मैं सफलता और पोजीशन, पद को प्राप्त करूँगा। इफ़ यू डू, और अगर ऐसा करते हैं, यूअर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र, तो फिर तुम्हारे बच्चे सफ़र होने जा रहे हैं, मतलब तुम्हारे बच्चे पीड़ित होंगे। यू में हैव ए गुड टाइम, हो सकता है कि तुम्हारे को अच्छा समय मिल भी जाए। बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, लेकिन तुम्हारे बच्चों को इसके लिए भुगतना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, इसलिए तुम्हें ये सब चीज़ें अपने ध्यान में रखना पड़ेगा, इनटू अकाउंट में रखना पड़ेगा। द आउटवर्ड क्रुएलिटी ऑफ मैन, इंसान की बाहरी निर्दयता, टू मैन, इन द नेम ऑफ गॉड, ईश्वर के नाम पर। इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर। इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, खुद के महत्व के नाम पर। इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा के नाम पर। ऑफ द फैमिली, परिवार की। यू विल हैव टू कंसिडर, तुम्हें विचार करना पड़ेगा। द आउटवर्ड क्रुएलिटी एंड वायलेंस एंड द इनवर्ड वायलेंस विच यू डू नॉट येट नो, जो बाहरी हिंसा है और आंतरिक हिंसा है जिसको तुम अभी तक नहीं जानते हो, इस पर तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। यू आर स्टिल यंग, तुम अभी तक छोटे हो। बट एज यू ग्रो ओल्डर, जैसे तुम बड़े होते जाओ, यू विल रियलाइज, तुम महसूस करोगे, हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल, कि कैसे आंतरिक रूप से इंसान जो है किस में गुजर रहा है, हेल में, भाड़, नर्क में। गोज थ्रू ग्रेट मिजरी, कितने बड़े दुख से होकर गुजर रहा है। बिकॉज, क्योंकि ही इज़ इन कॉन्स्टेंट बैटल, क्योंकि वो लगातार बैटल में है, लड़ाई कर रहा है, बैटल में है, संघर्ष कर रहा है। विद हाउसेज एंड कार्स, बट इफ ही हैज़ नो लव, नो अफेक्शन, काइंडलीनेस, no consideration, he is really worse than an animal, because he contributes to a world that is destructive. एक्सप्लोडेड, विस्फोट से उड़ा दी गई। वेपोराइज, वाष्पीकृत, मीनिंग हो चुका है। मिजरी यानी बहुत बड़ा दुख। बरीड, दफना दी गई। अब हम वापस आते हैं। यू आर स्टिल यंग, तुम अभी तक छोटे हो और अभी तक ये महसूस नहीं कर सकते कि जो बड़े लोग हैं अभी इस दुनिया में, वो किस कंडीशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो बैटल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं हाउसेस, घरों में। एंड बट इफ़ ही हैज़ नो लव, अगर आपके पास भले घर हो, मकान हो, बंगले हो, सब प्राप्त कर ले हो, लेकिन अगर आपके पास लव नहीं है, प्रेम नहीं है, अफेक्शन, स्नेह नहीं है, काइंडलीनेस, दयालुता नहीं है, नो कंसिडरेशन, अगर कोई विचार भी नहीं है, ही इज़ रियली वर्स, तो फिर वो सब कुछ होने के बाद भी, मकान और कार और सब कुछ होने के बाद भी उसकी हालत जो है कैसी है, एनिमल से भी वर्स है, एक पशु से भी ज़्यादा खराब है। बिकॉज, क्योंकि ही कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ए वर्ल्ड, वो ऐसे वर्ल्ड में योगदान दे रहा है जो कि डिस्ट्रक्टिव है, जो कि विनाशकारी है। सो वाइल यू आर यंग, जबकि तुम छोटे हो, यू हैव टू नो, तुम्हें जानना पड़ेगा, ऑल दीज थिंग्स, यू हैव टू बी शोन, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी बातें,
यू हैव टू बी एक्सपोज्ड, और तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाना पड़ेगा टू ऑल दीज थिंग्स, ये सारी बातें, सो दैट योर माइंड बिगिन्स टू थिंक, ताकि तुम्हारा दिमाग सोचना शुरू करे। अदरवाइज नहीं तो यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जेनरोसिटी, लाइफ बिकम्स ए टेरिबल बिजनेस। दैट इज़ वाई, यही वजह है, वन हैज़ टू लुक इन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस, हिंसा को नहीं समझना, इज टू बी रियली इग्नोरेंट, तो ये वास्तव में अनजानापन है, इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर। अगर हम सोचते हैं कि हम हिंसा के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम प्रॉब्लम और हिंसा और ये जो है बिना जानने से अपन इससे बच नहीं सकते, इसको जानना जरूरी है। दैट इज़ वाई वन हैज़ टू लुक, इसी वजह से वन हैज़ टू लुक इनटू, देखना पड़ता है, ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, हिंसा की जो समस्याएं हैं उन पर। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, क्योंकि ये नहीं समझना कि ये इग्नोरेंट करने लायक है, नज़रअंदाज करने लायक है, इज़ टू बी विदाउट इंटेलिजेंस, ये बुद्धिमत्ता वाली बात नहीं है, एंड विदाउट कल्चर, कोई सांस्कृतिक समझदारी की बात भी नहीं है। लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस, जीवन विशाल है, एंड मियरली टू कार्व आउट, और बड़ी मेहनत के साथ बनाया गया है, ए लिटिल होल, एक फॉर वन सेल्फ, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा एक होल बना दिया गया, मतलब समझ लो अपने लिए एक बिल बनाया गया, एंड रिमेन्स इन दी लिटिल होल, और वो अपने बिल में ही रहना चाहता है। फाइटिंग ऑफ एवरीबडी इज़ नॉट टू लिव, तो वो भी दूसरों से हमको कोई संघर्ष नहीं करना है, तो वो जीवित रहना नहीं है। इट इज़ अप टू यू, अब ये तुम्हारे ऊपर है, फ्रॉम नाउ ऑन यू, अभी से ही ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हैव टू नो, ये तुम्हें जानना है, अबाउट ऑल दीज थिंग्स। यू हैव टू चूज डिलिबरेटली टू गो द वे ऑफ वायलेंस और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी। अब ये तुम्हें सोचना है कि तुम्हें इस हिंसा के विरुद्ध जाना है या इस समाज के साथ ही रहना है, हिंसा के साथ ही रहना है। कार्व आउट बहुत परिश्रम से बनाना है, और कंसिडरेशन विचार करना है, डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी, कांस्टेंट लगातार। एक्सपोज्ड स्पष्ट दिखाया गया है, इग्नोरेंट अनभिज्ञ कि मुझे कुछ पता नहीं है। ब्लिस अब आगे मैसेज में आने वाला है, परम सुख, परम आनंद, स्वर्ग के समान सुख। स्टेट दशा, स्थिति, हालत, कहना, राज्य। और साफ्रेन केसरिया, भगवा, जाफरानी रंग। वायलेंट हिंसात्मक। बी फ्री, लिव हैप्पीली, joyously, without any antagonism, without any hate, then life becomes something quite different. Then life has a meaning, is full of joy and clarity. Be free, स्वतंत्र रहो, live happily, खुशी से रहो, joyously, आनंद से रहो, without any antagonism, बिना किसी बैर भाव के, शत्रुता के, without any hate, बिना किसी नफरत के। देन तब जीवन बिकम्स बन जाता है समथिंग क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल अलग। देन लाइफ हैज ए मीनिंग, तब जीवन का एक मतलब होता है, और फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी, जो बिल्कुल आनंद और स्पष्टता के साथ होता है। When you woke up this morning, जब इस सुबह तुम जगे थे, डिड यू लुक आउट, क्या तुमने देखा, आउट ऑफ द विंडो। यू वुड हैव सीन, तुमने देखा होगा, दोज हिल्स बिकम सैफरन, वो जो पहाड़ियाँ हैं कैसी बन गई है, केसरिया। एज द सन रोज, जब सूर्य उगा, अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई, उस सुंदर से नीले आसमान के विपरीत तरफ। एंड एज द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, और जब पक्षियों ने गाना शुरू किया। एंड द अर्ली मॉर्निंग कुक्कू कूड, और जल्दी जल्दी सुबह जब कोयल ने गाना गाया। देयर वॉज ए डीप साइलेंस, एक गहरी शांति थी, ऑल अराउंड, चारों ओर। ए सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लोनलीनेस, एक बहुत ही महान सुंदरता और एकांतता का भाव। एंड इफ वन इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, और अगर कोई व्यक्ति इन सब के प्रति अवेयर नहीं है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, तो बी डेड, उसको समझ सकते हो मृत के समान। बट ओनली ए वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन बहुत ही कम
वेरी फ्यू, गिने चुने पीपल ही अवेयर है, जागरूक है, जो ये सब जानते हैं, महसूस करते हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट, और तुम भी इससे अवेयर हो सकते हो, परिचित हो सकते हो। ओनली व्हेन, कब हो सकते हो, जब योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, जब तुम्हारा मस्तिष्क और दिल खुले हो। व्हेन यू आर नॉट फ्राइटन्ड, जब तुम डरे हुए नहीं हो। व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, जब तुम अब हिंसक नहीं रहे हो। देन देयर इज जॉय, तब आनंद है। देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस, असाधारण आनंद है। विच वेरी फ्यू पीपल नो, जिसको बहुत ही कम व्यक्ति ही जानते हैं, ऐसा आनंद है। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन, ये एक शिक्षा का भाग है। टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट, उस दशा तक ले आना। इन द ह्यूमन माइंड, मानव के मस्तिष्क की उस दशा तक ले आना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।